हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अंडर दिस चैप्टर हमने 5 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। अब आज ये लेक्चर जो है सिक्स्थ लेक्चर ऑन दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 6.1 हैज़ बीन डन। एक्सरसाइज 6.2, one concept new, increasing and decreasing, we have started in the lecture 5. Okay, definition, test, increasing, decreasing, geometrical representation, algebraical and first derivative test to say function is increasing or decreasing. Okay, now on which interval increasing, decreasing. Now this question, now today exercise 6.2, question number 3 onward we have to do from NCERT book. Question 3 is show that the function fx is equal to sin x, a part increasing in interval 0 to pi by 2, b part decreasing in interval pi by 2 to pi, c part neither increasing nor decreasing in 0 to pi, whole interval 0 to pi. Now you know that sin x function, if by graphically you want to prove, to show, so in first quadrant 0 to pi by 2, in first quadrant we know if angle is increasing, value also increasing, means x1 to x2, if increasing x2 from x1, then fx2 also increasing from fx1. You know angle how increasing, the value of the function also increasing in first quadrant for the sin x function. Okay, by graphically, geometrically, okay, but we are doing by the first derivative test. Now what is first derivative test? You know that derivative test also, so use that. So here differentiate it with respect to x. F dash x means dy by dx is equal to derivative of sin x, cos x we know. Okay beta, we know this. Now this you see it is derivative, तो डेरिवेटिव टेस्ट इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, ग्रेटर देन 0, तो वी नो इफ x बिलोंग्स टू पाई इंटरवल, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 to pi by 2, cos x is positive. So we know this is greater than and equal, greater than, and if 90 degree then 0, but not 90, it is open interval, so greater than 0. We know. Okay, cos x greater than 0 for every this, we know this. So hence clear that. Hence derivative f dash x is greater than 0 for every x belongs to first quadrant, means 0 to pi by 2, open interval. Okay beta, open interval, you know interval. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट क्लियर दैट, हैंस प्रूव्ड. सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज, द फंक्शन एफ एक्स है इज इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 मीन्स इज इंक्रीजिंग. डन. ओके, इज इंक्रीजिंग in 0 to pi by 2. Okay beta, done. Hence proved.
first part. Now second, A part proved. Now B part, in which interval asking? Pi by 2 to pi. So derivative we know here, we have done. So f dash x is equal to cos x. Okay beta, and cos x is here less than 0, negative in second quadrant. For every, we know, for every x belongs to second quadrant, means pi by 2 to pi. We know, simple, this is negative, we know cos x negative in the second quadrant. Okay, 90 to 180 degree cos x is negative, we know. So less than 0. So this implies derivative is less than 0 in interval pi by 2 to pi. Okay. Hence, decreasing by the definition, decreasing because less than 0, then decreasing. Derivative less than 0, decreasing. Derivative greater than 0, increasing. So hence, function fx is decreasing. Okay beta, second part also prove, decreasing in pi by 2 to pi. Now third part, one theorem is there, if on interval I function is not increasing everywhere or not decreasing everywhere, then on that interval some part increasing and other part decreasing. So we can say by the theorem that function neither increasing nor decreasing on whole interval. So direct this C part answer, because it is by the theorem that if one part is increasing, other part is decreasing, so in whole part 0 to pi it is neither increasing nor decreasing, you can write. So C part, okay, you will write because fx proved here, fx is increasing in interval 0 to pi by 2 and decreasing in interval pi by 2 to pi. So this implies fx is neither increasing nor decreasing in whole interval 0 to pi by the theorem. Done. Okay? This is the theorem, by theorem. ये थ्योरम याद रखो, ठीक है। होल इंटरवल पर अगर दो पार्ट बन जाए, एक इंटरवल के दो पार्ट बन रहे, एक में इंक्रीजिंग है एक में डिक्रीजिंग है, तो इन द होल इंटरवल वी कैन से दैट फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
Okay, so like this I told you. So now you be careful by the first derivative test. This definition keep in your mind. Okay beta. Now question number 5. नहीं, question number 4 beta. 4 is find the interval in which the function f given by fx is equal to 2x square minus 3x. Now interval find करना है question number 4 में. Okay, it is given increasing or decreasing. Question 4, fx is equal 2x square minus 3x, quadratic algebraic function 2x square minus 3x. Okay, what saying? Find the interval. Increasing interval find करना है, decreasing. Okay, A part, find increasing interval, यानी where it is increasing, that interval we have to find, and B part decreasing interval. Okay beta, यानी here interval, decreasing interval, it means here interval not given कि where increasing, where we have to find that increasing कहाँ है, decreasing कहाँ है, where that सर्च करना है. तो डेरिवेटिव सर्च करना है, डेरिवेटिव फाइंड करके सर्च करना है कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है. जहाँ ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है वहाँ इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा. जहाँ ये नेगेटिव है वैल्यू वो इंटरवल डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा. तो वी हैव टू चेक द डेरिवेटिव ओनली. सॉल्यूशन, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ डैश एक्स, power formula 2 to the 4x, simple, and this minus 3. This is derivative. Now check where is greater than 0. So put greater than 0, say greater than 0, say this. Okay, so then greater than 0 means 4x greater than 3, and then x greater than 3/4, strictly increasing. अब ये so this implies ये पॉजिटिव हो गया ना, ग्रेटर देन 0, greater than 3/4, greater than 0 हो गया. Okay, so this implies f dash x is greater than 0. Okay, f dash x is greater than 0 for every x belongs to greater than 3/4, means upper interval 3/4 comma up to greater means up to infinity. So on this interval it is increasing, so this implies increasing interval. Okay, so this implies increasing interval. Which one interval increasing? 3/4 to infinite. All real number
between this. This is the answer A part. This is your A part answer. ठीक है. Now B part. B is decreasing interval. कहाँ ये नेगेटिव है? तो we have to say कि 4x डेरिवेटिव -3 लेस देन 0 कहाँ है? लेस देन 0. ओके. तो x इज लेस देन 3/4. तो लेस देन 3/4 पर ये 4 एवरी x. तो मीन्स दिस implies f dash x डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव था, ये आपका लेस देन 3/4. f dash x is less than 0. Okay, sorry. f dash x is less than 0 for every x belongs to, किसको बिलोंग कर रहा है x? x की वैल्यू लेस देन 3/4 मीन्स 3/4 से -∞ तक. तो मीन्स -∞ ओपन इंटरवल टू 3/4. This is decreasing interval. So increasing interval this. So decreasing interval, decreasing in interval -∞ to 3/4 at x is equal to 3/4 it is 0. Okay, clear? So it is here strictly increasing, strictly decreasing, that we can say. If 0 including, then closed interval we can say increasing and decreasing. Simple. Okay, तो we can say if increasing decreasing, यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, इक्वल टू 0 आ जाएगा इस पर, क्लोज्ड, यहाँ पर क्लोज इंटरवल, तो एक ग्रेटर देन एंड इक्वल बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा क्लोज इंटरवल. डन. ओके. सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अदरवाइज स्ट्रिक्टली ऑन द ओपन इंटरवल. डन. Now question number 5, find the interval in which the function f(x) given that increasing decreasing. Okay, so then greater than equal to 0 we have to take and then do that. Question number 5 also similar question is there. You can do question number 5, similar question. Now same question, quadratic here cubic है. Okay, चलो I will do that also. Question number 5. See now question 5. What is 5? Find the interval in which the function f given by fx is equal to 2x cube minus 3x square, fx is equal to, question 5, 2x cube minus 3x square minus 3x square minus 36x plus 7. This. तो what is question? Increasing decreasing interval find करने हैं. Same. Find the interval increasing decreasing. तो solution, derivative with respect to x beta, first derivative test we have to use. तो differentiate with respect to x, then 3 2 जा 6 x square minus 3 2 जा 6x and minus 36 plus 0
derivative of constant 0. Done, plus 0. Now this we have to check this derivative, say greater than equal 0, say for increasing, okay, say for increasing, we have to search increasing interval, तो greater than 0, okay. This implies, simplify this quadratic equation, highest common factor 6, then x square minus 6 minus 6 6 जा 36 greater than equal 0, okay बेटा. Then factors, middle term splitting, 3 2 जा 6 minus 3 plus 2, product is minus 6 and sum is minus 1. So now clear that. So this implies 6 will go and divide that side, finish. Then here what is common? Okay, we can write x square minus 3x plus 2x, splitting middle term, factorize it, you know that, okay, minus 6 greater than equal 0, okay. Now two factors here, which one? X common, x minus 3 plus 2 common, x minus 3, simple, greater than equal 0. तो यहाँ एक फैक्टर हो गया आपका x माइनस 3, दूसरा फैक्टर हो गया आपका x प्लस 2, these two factor product is greater than पॉजिटिव, ठीक है बेटा. पॉजिटिव मीन्स दो फैक्टर हैं, इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो दोनों की वैल्यू या तो नेगेटिव है दोनों की वैल्यू, देन प्रोडक्ट पॉजिटिव या दोनों ही पॉजिटिव है, ओके. सो केस फर्स्ट, क्या बन गया केस फर्स्ट कि दोनों ही पॉजिटिव, x माइनस 3 greater than equal 0 and x plus 2 also greater than 0, okay. Case first, then x greater than equal to 3 and x greater than minus 2, okay. The greater than minus 2 and greater than 3, greater than minus 2 all आ गए, greater than 3 वाले सब आ गए greater than minus 2 में, okay. तो which is common? And means common, understand on the number line, ठीक है. माइनस 2 कहीं यहाँ है, कहीं 0 है, कहीं 3 है, तो ग्रेटर देन 3 इधर हो जाएंगे बेटा, एंड ग्रेटर देन माइनस 2 ये आ गए सारे. तो कॉमन कौन सा हो गया? ग्रेटर देन 3 इसी में है, ग्रेटर देन माइनस 2 में. तो दिस इम्प्लाइज ग्रेटर देन 3, तो दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 3, ठीक है बेटा. डन, ओके. सो इस पर ये क्या है? इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग इंटरवल, सो इंक्रीजिंग इंटरवल दिस ग्रेटर देन 3. और दूसरा देख लो आप, दूसरा क्या होगा इसमें? दूसरा केस, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो लेस देन में जाएंगे, ओके. लेस देन माइनस 2 एंड लेस देन 3, तो लेस देन माइनस 2, ठीक है,
लेस देन -2 पर ये एक सेकंड केस बनेगा, इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 3। ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट आ गया ग्रेटर देन 3। सेकंड केस में दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए बेटा, x लेस देन -3 एंड x लेस देन 3 एंड लेस देन -2। ओके बेटा, लेस देन -2। नाउ यू चेक -2 and 3 less than -2, this, and less than 3 means this. तो which is here common part, and means common, तो common here less than -2, तो less than -2, तो this implies x less than -2। इस पर ये इंक्रीजिंग इंटरवल 2 आ गए, एक तो आ गया ग्रेटर देन 3 इंटरवल, एक लेस देन -2 इंटरवल, 2 इंटरवल बन गए। ओके, इंक्रीजिंग इंटरवल, सो वी कैन राइट इंक्रीजिंग इंटरवल, बी केयरफुल लाइक दिस। ओके बेटा, 2 पॉइंट आए थे आपके, एक x3 और एक x -2, दोनों पर ये ध्यान देना है कि इंक्रीजिंग होगा -2 पर एंड लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन 3 पर। ठीक है, तो देन तो आपके इंटरवल आ गए इंक्रीजिंग इंटरवल। सो इंक्रीजिंग इंटरवल इंक्रीजिंग इंटरवल क्या बन गए बेटा, पहला इंटरवल ग्रेटर देन 3 टू इन्फिनिटी, और यहाँ आप क्लोज कर सकते हैं, ये ओपन। इंक्रीजिंग इंटरवल दिस एंड कॉमा, दूसरा इंटरवल लेस देन -2, less than -2 means okay, less than -2, -infinity -2, this interval। ओके, एंड इक्वल भी ले लें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मीन्स इक्वल पर ये 0 हो जाता है, इस पर -2 पर भी 0 है एंड 3 पर भी 0 है, क्या डेरिवेटिव। डन। तो इंक्रीजिंग इंटरवल दिस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग लेस देन 0, लेस देन, तो ये चेंज हो जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ लेस देन बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, डायरेक्ट लेस देन 0 मीन्स हेयर लेस देन -3 and less than -2, less than 3 less than -2, तो less than -2 and less than 3, ओके, less than 3 तो less than -2 पर रहेगा। ओके, एंड देन सेकंड केस, दोनों ही आपके नेगेटिव होने चाहिए, तो दोनों नेगेटिव का मतलब होता है कि एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव चाहिए सेकंड केस के लिए। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ना लिख कर। ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट भी हो गया। नाउ इफ लेस देन, सेकंड पार्ट, ये तो डिक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग। नाउ इफ डिक्रीजिंग देन x -3 into x plus 2, these two factor less than 0 for decreasing। okay, for decreasing
फॉर डिक्रीजिंग, तो फाइंड द वैल्यू। सो x लेस देन 3 एंड अब ये नेगेटिव है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नेगेटिव, देन वन नेगेटिव अदर पॉजिटिव मस्ट बी देयर, और बोथ नेगेटिव, और बोथ नेगेटिव। दो केस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होगी, ठीक है। और नेगेटिव चाहिए ना हमें बेटा, अगर दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बोथ नेगेटिव नॉट पॉसिबल, बोथ पॉजिटिव नॉट पॉसिबल, टू गेट द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, वन नेगेटिव अदर पॉजिटिव। तो ये लेस देन, तो ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन दूसरा -2, ये समझो पर इंपॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट केस, अब लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -2, देखो नंबर लाइन पर ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर इधर हो गया, ग्रेटर देन -2, लेस देन 3 कहीं पर 3 है, लेस देन 3 इधर हो गया, तो कॉमन पार्ट हो गया बिटवीन, दिस इज द कॉमन पार्ट बिटवीन -2 एंड 3, ओके बेटा। तो कॉमन पार्ट ये हो गया, तो कॉमन पार्ट हो गया इसमें, दिस इंप्लाइज व्हाट विल कम कि x बिलोंग्स टू -2, 3 बेटा, ये दिस इज द कॉमन पार्ट, बिकॉज -2 से इधर तक और 3 से लेस देन, -2 से ग्रेटर, तो बिटवीन आ गया। सेकंड पार्ट देखो, ये इंटरवल। अब सेकंड पार्ट, सेकंड केस मीन्स इसमें कोई पॉसिबल, ये हमने वाइस वर्सा कर सकते हैं, इस पर एक पर पॉजिटिव था, एक पर नेगेटिव लिया हमने, ठीक है। तो अब एक पर यहाँ पर जिस पर लेस देन 3 है वो ग्रेटर देन 3 ले लें, तो और x में भी ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन -2। अब इस पर देखो, x लेस देन -2, लेस देन इधर हो गया, लेस देन -2 से छोटा, ग्रेटर देन 3 है, 3 से ग्रेटर इधर हो गया, तो नो कॉमन पार्ट, तो नो सॉल्यूशन इन सेकंड पार्ट, नो सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। सो ओनली फर्स्ट केस, ओके। सेकंड केस नॉट सॉल्यूशन, बिकॉज कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, अंडरस्टैंड करो। यहाँ ग्रेटर देन 3 इधर की वैल्यू हो गई, लेस देन -2 लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड राइट साइड नो कॉमन solution, no common value, so no solution here. Be careful like this. So I discuss here your both part, so you must be remember this कि between value like this, तो -2 and 3 between, okay. So decreasing interval what, -2, 3, this is decreasing interval, ठीक है, both answer. Now you be careful like this question. Now next question, question number 6, similar question you can do. वी कर्व बना दिया फिर इसके लिए डायरेक्ट, ठीक है बेटा, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, जो ग्रेटर नंबर होता है उस पर
पॉजिटिव इंक्रीजिंग होता है और जो स्मॉलर वैल्यू होती है उस पर वो, ठीक है, फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऐसे होता है। इंक्रीजिंग हो गया ग्रेटर दैन 3, अभी किया ना 3 से, देखो यहाँ पर 3 आया एक वैल्यू आई -2, 2 वैल्यू x की आई, तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा हमेशा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये। तो इस इंटरवल पर ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, यहाँ क्या हो गया, डिक्रीजिंग, शॉर्ट वे, यहाँ क्या हो गया, फिर इस इंटरवल पर फिर पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग। तो वही आंसर हो गया क्या, कि 3 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग इंटरवल, और एक इंटरवल और हो गया कौन सा, -2 से -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी, -2, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग इंटरवल, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग इंटरवल, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है यहाँ डेरिवेटिव, तो इस वैल्यू पर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसे चलते हैं। लास्ट जो लार्जेस्ट नंबर होता है उस पर पॉजिटिव, ये कर्व ऐसे होगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, वेवी कर्व, ओके। तो यहाँ नेगेटिव डाउन हो जाता है, ये एक्स एक्सिस, तो ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, वी नो है ना, y पॉजिटिव ऊपर, नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस से, नीचे y नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस से, नीचे आ गया एक कर्व, फिर ये कर्व ऊपर, वेवी कर्व बोलते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू देगा फंक्शन, यहाँ पॉजिटिव देगा, यहाँ ये नेगेटिव डेरिवेटिव, और यहाँ डेरिवेटिव 0 होगा इस पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पर डेरिवेटिव यानी फंक्शन नहीं है, y नहीं है, ये डेरिवेटिव फंक्शन ग्राफ, ओके। डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव है, डेरिवेटिव यहाँ नेगेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव, ओके। सो बी केयरफुल लाइक दिस आल्सो, आई टोल्ड यू वी कर्व डायरेक्ट वी कैन डू, वी कर्व बोलते हैं इसको हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल, सेम क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन डू दैट। इसमें एक पार्ट बता देता हूँ मैं जिसमें सब नेगेटिव आएगा, तो यू आर डूइंग रॉन्ग हेयर। सी पार्ट, क्वेश्चन 6 सी पार्ट, ओके। -2x³ -9x square, same question as now we have done, fx is equal to -2x³, not 3, -2x³ -9x square -12x plus 1, this, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x, what will be? तो here saying in which the following functions are strictly increasing, strictly or decreasing, strictly asking here, okay, then open interval, strictly increasing, कहाँ 0 नहीं है, greater than 0 only, तो f dash x is equal to what is that, -2 3 जा 6 x square, डेरिवेटिव पावर फार्मूला, -9 2 जा 18x -12x derivative 12 and plus 0, so this is derivative, so what is here, minus common, -6 common, what will be x square, माइनस कॉमन देन प्लस, ऑल 3 टर्म नेगेटिव, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 6 2 जा 6 3 जा 18, ओके, एंड 6 2 जा 12 एंड माइनस कॉमन देन प्लस 2, से दिस greater than 0 for increasing interval, strictly increasing, say greater than 0,
या दो इसमें से सीधा इसको इक्वल करके इसके पार्ट निकाल लें, क्या बनते हैं? ओपन इंटरवल, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल। वी कैन से नाउ वन मेथड आई एम टेलिंग कि पुट इक्वल टू 0, इफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों फाइंड करने हैं तो 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लो। से डेरिवेटिव 0 फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये क्या बन गया बेटा? ये नेगेटिव आप यहीं रहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है सारा, 6 उधर ले जाएंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। तो माइनस दिस एंड दिस पार्ट हियर 2 इंटर 2 3 2 1 जा 2 2 + 1 3, तो x प्लस 2 सॉरी 2 x प्लस 1x, तो मीन्स x प्लस 2 1 फैक्टर एंड x प्लस 3, 2 कॉमन नहीं 1 कॉमन ओनली, तो x प्लस 3 x प्लस 2 फैक्टर बनेंगे, x प्लस 2 2 1 जा 2 ना, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, हाँ दिस 2 फैक्टर डायरेक्ट आई रिटर्न, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे और माइनस एज इट इज बाहर चलेगा, ठीक है बेटा। अब ये नेगेटिव है, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब इसको आप 0 पुट करोगे तो एक तो वैल्यू -2 आ गई, एक -1 आ गई, -2 एंड -1, ये वैल्यू यहाँ पर आई। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2, -1। अब ये नेगेटिव है बाहर, यहाँ ध्यान देंगे तो फंक्शन क्या हो गया? ये f' है। अब देखेंगे ध्यान से, नेगेटिव है इसमें बाहर, तो ये x इजिकल टू -2 पर 0 है, x इजिकल टू -1 पर 0 है। ओके, तो अब इसमें x इजिकल टू -2, x इजिकल टू -1, तो माइनस बाहर है तो साइन चेंज होगा, माइनस से किसी एक का साइन चेंज हो जाएगा। या हम कहें जहाँ ये इंक्रीजिंग है वहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ डिक्रीजिंग है वहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव है। तो अब आप इसको प्योर चेक करो, नेगेटिव बाद में देखो क्या आ रहा है x प्लस 2 और x प्लस 1 पर, x इजिकल टू -2, x इजिकल टू -1, दो वैल्यू आ रही है, -2 एंड -1, -2 -1, नंबर लाइन से देखो वेवी कर्व डायरेक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ ये पॉजिटिव दे रहा, यहाँ ये नेगेटिव दे रहा। ओके, फिर यहाँ पॉजिटिव देगा। 3 इंटरवल बनेंगे पूरे रियल नंबर्स के, 2 पॉइंट्स आए तो 3 इंटरवल। ओके, -2 से -1 से ग्रेटर, बिटवीन एंड ग्रेटर। तो यहाँ ये इंक्रीजिंग है, बट यहाँ नेगेटिव की जगह यहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस नेगेटिव की वजह से। ओके, जहाँ इंक्रीजिंग है वहाँ डिक्रीजिंग बन जाएगा। ओके, तो 3 इंटरवल यहाँ लिखेंगे, डिसजॉइंट इंटरवल, डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट इंटरवल्स कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया आपका -1 से इन्फिनिटी 1 इंटरवल। दूसरा इंटरवल बन गया बेटा -2 से -1 तक, ओपन इंटरवल, ठीक है। और तीसरा इंटरवल बन गया -∞ to -2, open interval. Okay, this. Now here asking where increasing, decreasing, here minus sign important. So ये यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा ये? डिक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल क्या क्या बन जाएंगे?
एक तो -1 से इन्फिनिटी, ये नेगेटिव वैल्यू देगा यहाँ डेरिवेटिव, और यहाँ फिर नेगेटिव देगा कौन से पर, एंड यूनियन भी लिख सकते हैं यहाँ, या एंड दिस -2 से माइनस इनफाइनाइट, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू -2 ओपन इंटरवल। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन गया है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग strictly increasing interval अब यहाँ पर जहाँ ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है बीच में, ये अब ये पॉजिटिव हो जाएगा इस नेगेटिव की वजह से। देन इस पर ये ग्रेटर वैल्यू यानी ग्रेटर देन 0 होगा, किस पर, -2 से -1 बिटवीन ओपन इंटरवल। दिस इज आंसर। So these are the two decreasing interval and one is increasing interval. So like this you can do question 7.